لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا بھائی محمد لعیق حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک اور نئی اور روچک کہانی لے کر۔ ایک انسان جس کے پاس دولت تھی، عزت تھی، لیکن اس نے سب کچھ ٹھکرا دیا صرف اس لیے کہ وہ سچ کے خلاف جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے جیل میں ڈالا گیا، اسے پیٹا گیا، لیکن وہ ٹوٹا نہیں۔ یہ کہانی ہے اس امام کی جسے دنیا آج امام اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی۔ امام ابو حنیفہ کا بچپن کا نام نعمان بن ثابت تھا۔ یہ اسلامی اتہاس کے سب سے بڑے فقہا یعنی اسلامی قانون کے ودوانوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ وہ فقہ کے ایسے امام تھے جنہوں نے پوری دنیا میں سب سے بڑی سنی فقہی مسلک حنفی مسلک کی بنیاد رکھی۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش سال 699 عیسوی یعنی 80 ہجری میں کوفہ میں ایک تاجر کے گھر ہوئی تھی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر اسلام کے سب سے بڑے عالموں میں سے ایک بنے گا۔ ان کا پریوار اصل میں فارسی تھا، لیکن وہ کوفہ میں رہتے تھے۔ ان کے والد ثابت کپڑے کے کاروباری تھے، اس لیے بچپن سے ہی امام ابو حنیفہ بھی کاروبار سے جڑے رہے۔ امام ابو حنیفہ کے والدین کے بارے میں جانکاری تھوڑی کم ہے، لیکن جو مشہور اور بھروسے مند باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے والد ثابت ابن زوطا مول روپ سے فارسی نسل سے تھے۔ ان کا پریوار پہلے افغانستان ایران کے علاقے میں بسا تھا، بعد میں وہ آ کر کوفہ میں بس گئے۔ کچھ روایتوں کے مطابق ان کے والد چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابو طالب سے بھی ملے تھے۔ ان کی والدہ کا نام اتہاس میں صاف طور پر نہیں ملتا ہے، لیکن وہ بہت پرہیزگار اور دینی عورت تھیں۔ امام ابو حنیفہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب بھی کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اپنی ماں کی رائے اور دعا کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کے والد نے انہیں حلال روزی اور سادگی سکھائی۔ ان کی والدہ نے انہیں دین اور اخلاق سکھایا، اور انہی دونوں کی تربیت نے ایک ایسے امام کو جنم دیا جسے آج پوری دنیا جانتی ہے۔ شروعات میں امام ابو حنیفہ علم سے وابستہ نہیں تھے، بلکہ کپڑے کے کاروباری تھے، لیکن جلد ہی ان کا رجحان علم کی طرف ہو گیا۔ کوفہ اس سمے اسلامی علم کا بہت بڑا سینٹر تھا۔ یہاں بڑے بڑے صحابہ یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور تابعین رہتے تھے۔ یہاں بڑے بڑے علماء کی محفلیں لگتی تھیں، خاص کر فقہ پر گہری بحث ہوتی تھی۔ امام ابو حنیفہ اس وقت ایک کامیاب کپڑے کے کاروباری تھے اور تیز دماغ کے مالک تھے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ کسی کام سے جا رہے تھے، تبھی ان کی ملاقات ہوئی حماد ابن ابو سلیمان سے۔ حماد ایک بڑے عالم تھے اور ان کے چاروں طرف شاگردوں کی محفل لگی رہتی تھی۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا، ان کی شخصیت اور ذہن کو محسوس کیا، اور پھر ایک ایسی بات کہی جس نے سب بدل دیا۔ انہوں نے کہا، تم بازار کے لیے نہیں بنے، تم علم کے لیے بنے ہو۔ یہ جملہ امام ابو حنیفہ کے دل میں اتر گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اصل مقصد صرف کمائی نہیں بلکہ علم حاصل کرنا ہے۔ یہی وہ مومنٹ تھا جہاں سے انہوں نے دھیرے دھیرے کاروبار ختم کیا اور پوری طرح علم کی طرف مڑ گئے۔ امام ابو حنیفہ نے لگ بھگ 18 سال تک لگاتار صرف ایک ہی استاد حماد ابن ابو سلیمان سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے ہر مسئلے پر بحث کی، ہر سوال کو گہرائی سے سمجھا، فقہ کو پریکٹیکلی سیکھا۔ سمے کے ساتھ حماد ابن ابو سلیمان کو اپنے اس شاگرد پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ جب وہ کہیں باہر جاتے تو اپنی جگہ امام ابو حنیفہ کو بیٹھاتے، یعنی ایک شاگرد اب استاد کی جگہ لینے لگا تھا۔ جب حماد ابن ابو سلیمان کا انتقال ہوا تو ان کے بعد ان کی جگہ مجلس کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری امام ابو حنیفہ کو ملی، اور یہیں سے شروع ہوا ان کا اصلی مشن۔ ایک صحیح استاد ایک عام انسان کو اتہاس کا سب سے بڑا نام بنا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ صرف حدیث یاد کرنے والے عالم نہیں تھے، وہ سوچتے تھے، ترک کرتے تھے اور ہر مسئلے کو گہرائی سے سمجھتے تھے۔ انہوں نے فقہ کو ایک نیا روپ دیا۔ انہوں نے قیاس یعنی ترک آدھارت فیصلوں کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے اسلامی قانون ایک سسٹم بن گیا۔
धीरे धीरे उनके इल्म की चर्चा हर तरफ होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे उनसे सीखने के लिए, और यहीं से शुरू हुआ हनफी मसलक। इमाम अबू हनीफा के हनफी मसलक का शुरू होना कोई एक दिन या एक किताब से नहीं हुआ था। ये धीरे धीरे एक मूवमेंट की तरह डेवलप हुआ था। कूफा, ये उस दौर में इस्लामी इल्म का बड़ा सेंटर था। यहाँ सहाबा यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आकर बसे थे। अलग अलग इलाकों के लोग आते थे, नए नए मसले पैदा होते थे। यानी यहाँ सिर्फ हदीस सुनना नहीं, बल्कि नए सवालों का जवाब देना जरूरी था। इमाम अबू हनीफा सिर्फ हदीस तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कंबाइन किया कुरान, हदीस, सहाबा के फैसले और कयास यानी तर्क। फिक्ह को एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया। यही उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इमाम अबू हनीफा अकेले काम नहीं करते थे। उन्होंने कूफा में एक स्टडी सर्कल यानी मजलिस शुरू की, जहां उनके शागिर्द बैठते थे। हर मसले पर डिस्कशन होता था, डिबेट होती थी। कोई भी फैसला तुरंत नहीं होता था, पहले गहरी डिस्कशन होती थी। उनके फेमस स्टूडेंट्स अबू यूसुफ और मोहम्मद अल शैबानी ने, इन सब ने मिलकर हजारों मसलों के जवाब निकाले, उन्हें ऑर्गेनाइज किया। यही आंसर्स बाद में हनफी फिक्ह बने। इमाम अबू हनीफा ने खुद बहुत कम लिखा, लेकिन उनके स्टूडेंट्स ने फिक्ह को किताबों में लिखा, उसे अलग अलग शहरों में फैलाया। अबू यूसुफ बाद में अब्बासी दौर में बड़े काजी बने और उन्होंने हनफी मसलक को ऑफिशियल लेवल तक पहुंचा दिया। जब अब्बासी खिलाफत आई, तब हनफी मसलक को और सपोर्ट मिला। सरकारी फैसलों में इसका इस्तेमाल हुआ। बाद में ऑटोमन एम्पायर ने भी इसे अपनाया, और यहीं से ये मसलक दुनिया में सबसे ज्यादा फैल गया। आज दुनिया के बहुत बड़े हिस्से जैसे इंडिया, पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश में लोग हनफी मसलक फॉलो करते हैं। इमाम अबू हनीफा का दौर बहुत खास था, क्योंकि उसी समय दूसरे बड़े इमाम भी थे, जैसे इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हंबल। इन सभी इमामों ने इस्लामी कानून को मजबूत किया, लेकिन इमाम अबू हनीफा इनमें सबसे पहले माने जाते हैं। कुछ विद्वानों के मुताबिक इमाम अबू हनीफा को हजारों हदीसें याद थीं। कुछ रिवायतों में ये तादाद 40,000 तक बताई जाती है। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर उन्हें इतनी हदीसें याद थीं, तो उनकी किताबें कम क्यों हैं? इसका जवाब ये है कि उनका दौर हदीस लिखने का शुरुआती दौर था। उन्होंने खुद ज्यादा किताबें नहीं लिखीं। उनके शागिर्दों जैसे अबू यूसुफ और मोहम्मद अल शैबानी ने उनके इल्म को आगे फैलाया। इमाम अबू हनीफा का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, अगर कोई हदीस सही हदीस साबित हो जाए तो वही मेरा मसलक है। इसका मतलब वो हमेशा सही हदीस को सबसे ऊपर रखते थे। इमाम अबू हनीफा कहते थे, उनकी अपनी राय आखिरी नहीं है, असली अथॉरिटी कुरान और सही हदीस है। अगर कभी उनकी राय और किसी सही हदीस में फ़र्क हो जाए तो हदीस को मानो, उनकी राय को छोड़ दो। मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, यानी सिर्फ इसलिए कि वो बड़े इमाम हैं उनकी हर बात को बिना सोचे मत मानो। अगर कोई साफ और सही हदीस मिल जाए तो उसी को फॉलो करो। उस दौर में अब्बासी खिलाफत की हुकूमत थी। खलीफा अल मंसूर चाहते थे कि इमाम अबू हनीफा काजी बन जाएं। ये एक बहुत बड़ा ओहदा था, दौलत, ताकत, इज्जत थी। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी भी सूरत में हुकूमत के दबाव में गलत फैसले नहीं देना चाहते थे। उनका इनकार सुनकर खलीफा अल मंसूर को गुस्सा आ गया। इमाम अबू हनीफा को इस इनकार की कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, उन पर जुल्म किया गया। रिवायतों में आता है उन्हें कोड़े लगाए गए। उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपना फैसला बदल दें, लेकिन उन्होंने अपना उसूल नहीं छोड़ा। जेल की सख्त हालत और जुल्म की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। 767 ईस्वी में बगदाद में इमाम अबू हनीफा इस दुनिया से रुखसत हो गए। कुछ रिवायतों में आता है कि उन्हें जहर दिया गया था, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ, लेकिन ये बात 100% कन्फर्म्ड नहीं है। उनकी मौत के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। कुछ रिवायतों के मुताबिक लाखों लोग इनके जनाजे में शामिल हुए। ये दिखाता है कि लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते थे।
इमाम अबू हनीफा का इंतकाल सिर्फ एक मौत नहीं था, बल्कि ये एक कुर्बानी थी सच और इंसाफ के लिए। उन्होंने सिखाया कि सच के सामने झुकना नहीं, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो टूटे नहीं, बल्कि इतिहास बन गए। उनका इल्म, उनकी सोच आज भी जिंदा है। उनके शागिर्द जैसे अबू यूसुफ, मोहम्मद अल शैबानी ने उनके मिशन को पूरी दुनिया में फैलाया। इमाम अबू हनीफा की जिंदगी का एक बड़ा मशहूर वाकया है। कूफा में इमाम अबू हनीफा के घर के पास एक आदमी रहता था। वो अक्सर शराब पीता था और रात को नशे में जोर जोर से गाने गाता था, जिसकी वजह से मोहल्ले के लोग परेशान रहते थे और इमाम अबू हनीफा भी, जो रात को पढ़ाई करते थे, उन्हें भी बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन इमाम अबू हनीफा कभी उससे झगड़ा नहीं करते थे। हर रात वो आदमी नशे में गाता और पूरी रात शोर करता, फिर भी इमाम अबू हनीफा सब्र से काम लेते रहे। एक रात अचानक शोर बंद हो गया। इमाम अबू हनीफा ने महसूस किया कि आज वो आदमी नहीं गा रहा। उन्होंने लोगों से पूछा तो पता चला कि उसे सिपाही पकड़ कर ले गए। ये सुनकर इमाम अबू हनीफा तुरंत उठे और सीधे हाकिम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, उसे छोड़ दो, वो मेरा पड़ोसी है। जब उस आदमी को छोड़ा गया तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, मैं आपको इतनी तकलीफ देता था, फिर भी आपने मेरी मदद की। इमाम अबू हनीफा ने सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे पड़ोसी हो और पड़ोसी का हक अदा करना मेरा फर्ज है। ये सुनकर उस आदमी का दिल बदल गया। उसने गुनाह छोड़ दिए और एक अच्छा इंसान बन गया। इमाम अबू हनीफा हमें सिखाते हैं, सच के लिए खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। इल्म हासिल करो, लेकिन उसे समझो भी, क्योंकि इल्म ही वो ताकत है जो इंसान को अमर बना देती है। तो दोस्तों, ये थे इमाम अबू हनीफा, लेकिन आज हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने गुजरे हुए इन नायकों की सच्ची कहानियों को सुनाएं और अपनी शानदार तारीख के बारे में बताएं। साथियों, ये काम हमें ही करना होगा। कोई फिल्म, सीरियल या स्कूल इन कामों को नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज़ ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अब YouTube ने हमें थैंक्स और जॉइन का बटन भी दे दिया है, तो प्लीज़ इस बटन का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हम और अच्छी तरह वीडियो बनाने के लायक हो सकें।